Okay, so let us start. Okay, this is a continuation of previous lecture, which was your engineering, traffic engineering studies. Okay, so this lecture deals with one method which is used for determining the volume, collecting volume data, as well as the speed, travel time, delay, all data we can collect using this method. Okay, this is called the test car method, or we can say moving observer method. See, all the previous methods were what? We were not involved in the traffic, right? We were standing away from the traffic and we are collecting the data. But in this case, what happened? We as an observer who is collecting data will have to move with the traffic flow. Okay, that means what? We will hire one car or vehicle, then we will move that vehicle along with the traffic, and then we will collect the data. That's why it is called what? Moving observer method. In other methods of a data collection, what we were doing? We were standing at certain position and collecting data. Okay, we will not interacting, or we are not directly involved within the traffic. But in this case, we as an observer will move along with the traffic. Okay, we'll go inside the traffic, we will move along with them, and we will collect data. That's why it is called moving observer method. Okay, so first I will discuss. Okay, we have already discussed that what is the method, what is the procedure of conducting this experiment or conducting this test. Okay, so what we are doing, we are taking a section. Okay, we are taking one stretch of a road and we are drawing one segment. Okay, suppose this was your in front of the BBIT gate, and this is somewhere in Chadial. Okay, this segment and this segment. Okay, say for example, you are considering one stretch of road. Okay, now what you will do? We will draw a segment. Okay, these are the two segments for our analysis or for our survey. Okay, survey purpose. Now what we will do? We will move from one direction towards, suppose we started from BBIT, which is in west, and your Chadial is in east. Okay, then what happens? You are starting your vehicle from here. Now you are moving towards west. Okay, then what you will do? When you reach this segment, you will take U-turn, then again travel in this lane. Okay, in this opposite lane towards eastward. And again what you will do? Again you will take U-turn, another U-turn. Okay, and again you will move from west to east. Okay, so okay, this is your west. Okay, sorry, this is your west and this is your east, right? I think like this. So what we are doing, we are moving around this segment for many times. Okay, and as we move around this segment, what we have to do? We have to collect the data. Since we are moving inside the traffic, that's why our observer is in moving condition. That's why its name is moving observer method. And we will take several turns. Okay, for every turn, we will collect some data. Now, what are those data? First, when you move towards west, then what data we need to collect? First, time of travel. Okay, what is the time of travel? मतलब कि तुमको इस बीबीआईटी से चडियाल तक जाने का टाइम कितना लगा. ओके, एंड सिंस यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, तो हम लोग इसको टी सफिक्स वेस्ट लिख रहे हैं. ये डायरेक्शन गलत है थोड़ा, ठीक है. दिस विल बी टी सफिक्स वेस्ट डब्ल्यू. ओके, अब क्या है कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द बीबीआईटी टू चडियाल, what data that you have to collect? You have to collect that what is the number of the vehicles coming from the opposite direction. ये वाला भी हमको चाहिए, ठीक है. मतलब तुम बीबीआईटी से चडियाल की तरफ जा रहे हो, तो चडियाल से बीबीआईटी की तरफ कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है. वी हैव टू कलेक्ट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट. ओके, और इसके साथ और डाटा क्या कलेक्ट करते रहना है? along with this data we need to collect the how many vehicles have overtaken your car. Suppose you are in this car, ये वाला vehicle आके तुमको overtake कर दिया, so ये number 1 हुआ.
दूसरा वाला व्हीकल भी आके ओवरटेक कर दिया, सो नंबर विल बी 2, सो दैट नंबर इज डिनोटेड बाय OW। तो OW कितना है, OW मतलब है कि द व्हीकल्स विच हैज ओवरटेकन द टेस्ट कार, उसका नंबर कितना है। ओके, अलॉन्ग विद दिस और क्या क्या चाहिए कि सपोज तुम यहाँ पे टेस्ट कार है, ये वाला कोई दूसरा कार है, नाउ यू हैव ओवरटेकन दैट कार, ठीक है, सपोज अदर कार नंबर 1, तो PW विल बी 1। फिर थोड़ा डिस्टेंस कवर करके तुमने और एक व्हीकल को फिर से ओवरटेक कर दिया, तो PW विल बी 2। अब थोड़ा डिस्टेंस के बाद तुमने वो पिछले वाले को ओवरटेक किया था, वो थोड़ा आगे आया था, ठीक है, और फिर से तुम उसको दोबारा, मतलब कि थ्रू आउट योर जर्नी तुमने कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स को ओवरटेक किया। इट मे बी द सेम व्हीकल, एक ही व्हीकल को तुमने 10 बार ओवरटेक कर चुके हो, तो हमको काउंट करना है 10 बार ही हमने ओवरटेक किया है, ठीक है, तो वैसे ही काउंट करते जाना है। सो क्या क्या काउंट करना है, एक है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से कितना व्हीकल आ रहा है, एक है कि कितना व्हीकल तुमको ओवरटेक कर रहा है विच इज OW। ओके, एक है तुम्हारा तुमने कितने व्हीकल्स को ओवरटेक किया, दैट इज मतलब हाउ मेनी व्हीकल्स यू हैव पास्ड, इसीलिए PW है। और ये वाला क्या है, हाउ मेनी व्हीकल हैज ओवरटेकन यू, इसलिए O है। ओके, ये वाला क्लियर है एवरीवन? दिस डायग्राम इज क्लियर, ये कॉन्सेप्ट इस चीज का। एक है कि तुम्हारा ये डायरेक्शन चेंज होगा, वेस्ट ईस्ट होगा, ये TW है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, सो TW टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एक है कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, वो भी काउंट करना है ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, फिर क्या करना है, तुमको कितना व्हीकल ओवरटेक किया और तुमने कितनों को ओवरटेक किया। ओके, हाउ मेनी व्हीकल यू हैव पास्ड, तो ये सब notation है। Okay, N is the number of vehicles traveling from the opposite direction, O is number of vehicles that overtake the test car, P is number of vehicles overtaken by the test car, okay, and T is the travel time. Similarly, when you are moving towards eastward, तो क्या क्या चाहिए अब बोलो हमको, सफिक्स में बोलो क्या क्या लगेगा। When you are moving towards eastward, अब तुम यहाँ से पहुंच के now you have taken the U-turn, ठीक है, यू टर्न लेने के बाद तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड ईस्टवर्ड, व्हाट आर द डाटा, क्या क्या डाटा हमको कलेक्ट करना है, एनीवन? मतलब चढ़ियल से BBIT की तरफ जा रहे हो तो और क्या क्या डाटा चाहिए? हाँ बोलो, first data is that travel time, right? How much time you have taken to cover this distance from XX to YY, वो एक चाहिए। और इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा 3 डाटा क्या था? और एक था opposite direction, when you are traveling from Chadiyal to BBIT, then how many vehicle was traveling from BBIT to Chadiyal during that period? Okay, that is NW, इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, ऑपोजिट वाला को N से डिनोट करेंगे। ओके, अच्छा ये वाला सॉरी, दिस विल बी E, ओके, ऑल दिस विल बी योर सफिक्स विल बी E। ओके, दिस इज E, ये भी तुम्हारा E होगा, मतलब क्योंकि तुम ईस्ट वर्ड की तरह जा रहे हो, सो दिस विल बी E। ओके, एंड दिस इज योर ईस्ट, सॉरी दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट, ठीक है। सो एक है ट्रैवल टाइम, एक है ऑपोजिट डायरेक्शन से कितना व्हीकल्स आ रहा है, एंड सिंस यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे सफिक्स में ईस्ट आ गया है। एक है कि हाउ मेनी व्हीकल्स हैव ओवरटेकन योर व्हीकल विच इज द टेस्ट व्हीकल, सो ओ, और तुम ईस्टवर्ड की तरह जा रहे हो तो इसलिए ई सफिक्स है, ठीक है, एंड हाउ मेनी व्हीकल यू हैव ओवरटेकन और यू हैव पास्ड, सो पी। ओके, ईस्ट की तरफ तुम जा रहे हो तो इसलिए ये ई है। सो सेम ये सब यही है NOPT, ठीक है, क्या है, N इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, O इज द ओवरटेकन व्हीकल, P इज हाउ मेनी व्हीकल दैट यू हैव ओवरटेकन एंड T इज द ट्रैवल टाइम। क्लियर है ये वाला? प्लीज रेस्पॉन्ड, কেউ একজন তো রেসপন্ড করো, বুঝবো কি করে। तो अब हमको क्या चाहिए था, वी नीड टू कलेक्ट, वी नीड टू व्हाट वी आर कलेक्टिंग, वी आर कलेक्टिंग ट्रैफिक डाटा, और यहाँ पे क्या क्या ट्रैफिक डाटा है, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, ट्रैवल टाइम, ये सब। ट्रैवल टाइम तो हो गया है, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए यहाँ से, वॉल्यूम, मतलब कितना व्हीकल्स
एक्स एक्स को क्रॉस करेगा और कितना व्हीकल्स वाई वाई को क्रॉस करेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बोलेंगे कि VW मतलब the volume of the vehicles in the westbound direction, मतलब when they are moving to the how many vehicles I have crossed this XX, उसका मतलब VW है, okay, and VE will be what, how many vehicles have crossed this YY segment, मतलब यहाँ पे, okay, so VW निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, number of vehicles crossing this segment, ठीक है, in a given period of time, ठीक है, तो इस एक्स एक्स वाले सेगमेंट को कितना व्हीकल क्रॉस करेगा ड्यूरिंग द टाइम टी डब्ल्यू, पहले ये बोलो टी डब्ल्यू में कितना ट्रैवल वो ये वाला लाइन को क्रॉस कर सकता है। टी डब्ल्यू मतलब इस टाइम में, मतलब 5 बजे से लेकर 6 बजे तुम एक बार वेस्ट की तरफ जा रहे हो, फिर तुम 6 बजे से 7 बजे नेक्स्ट ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो जब तुम बीबीआईटी से चड़ियाल की तरफ जा रहे थे तब कितना टाइम लगा था, 5 से 6 मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में इस एक्स एक्स मतलब विद इन दैट 1 घंटा, विद इन दैट 1 आवर, मतलब फ्रॉम 5 PM to 6 PM, हाउ मेनी व्हीकल्स हैव क्रॉस दिस एक्स एक्स डायरेक्शन, बोलो कितना व्हीकल क्रॉस करेगा एक्स एक्स डायरेक्शन को। एनी आइडिया, इस वाले एक्स एक्स मतलब ये वेस्ट में कितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा इस वाले सेगमेंट को ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टी डब्ल्यू, जितना इस तरफ से जा रहा है, राइट, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो भी व्हीकल्स इस लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग टी डब्ल्यू इज नथिंग बट व्हाट, दैट विल बी ये वाला, देखो ओ डब्ल्यू माइनस टी डब्ल्यू। देखो एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर फ्रॉम 5 PM, यू हैव एंडेड हियर एट 6 PM, ठीक है, तुम लोग यहाँ से 5 जन स्टार्ट किए थे, ठीक है, 5 जन से सपोज यू आर द टेस्ट व्हीकल, तुम इन्वॉल्व नहीं करोगे खुद को, ठीक है, यू आर द टेस्ट व्हीकल, तुम्हारे साथ साथ और 5 जन वहां पे ऐसा करके स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के बाद 2 व्हीकल तुमको ओवरटेक करके चला गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के बाद 2 व्हीकल्स हैव ओवरटेकन यू, सॉरी मतलब 4 व्हीकल्स हैव ओवरटेकन यू, ओके, आउट ऑफ 5 व्हीकल्स 4 व्हीकल तुमको ओवरटेक करके चला गया कुछ टाइम के बाद, 5 बजे से लेकर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, फिर ड्यूरिंग योर जर्नी, ठीक है, बीच में चड़ियाल की तरफ जाते जाते क्या हुआ कि तुमने फिर जो भी तुमको ओवरटेक गया था 4 व्हीकल, उसमें से सिर्फ 2 जन को तुमने ओवरटेक किया, ठीक है, तो जब 5 बज के यहाँ पे मतलब 6 बजने वाला होगा तो तुम यहाँ पे पहुंचे हो, तो तुम्हारे साथ कितना व्हीकल यहाँ पे पहुंचा है, हाँ, तुम लोग यहाँ पे तुम अपना काउंट छोड़ के बाकी का काउंट करो, तुम्हारे साथ 5 गया था, ठीक है, 5 में से 4 जन तुमको पहले ओवरटेक करके क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, नाउ ड्यूरिंग योर जर्नी क्या हुआ कि तुम अब इतना स्पीड बढ़ा दिया कि तुमने क्या किया, जो भी तुमको ओवरटेक करके गया था उसमें से 2 जन को तुमने फिर से ओवरटेक कर दिया, ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे जब पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ साथ कितना जन इसको क्रॉस किया था, व्हेन यू रीच हियर, तो तब तक कितना जन इसको क्रॉस किया होगा, 2 জন ম্যাম, ठीक हो रे, একজনকে তো আগেই ওভারটেক করা হয়েছিল। 2 जन कैसे आया, OW माइनस PW, ओके, 4 तुमको ओवरटेक करके गया था, उसमें से तुमने 2 को ओवरटेक कर दिया, मतलब 2 जन क्रॉस कर चुका ऑलरेडी, ठीक है, अब बचा कितना, सिर्फ 2 जन ही, तुम्हारे पीछे और 2 जन एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन 2 जन ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, तुम्हारा टाइम वही खत्म होता है, ओके, क्योंकि तुमने एक्सपेरिमेंट कब खत्म करना, व्हेन यू विल रीच दिस, सो इन दैट मोमेंट ओनली 2 व्हीकल्स हैव क्रॉस दिस सेगमेंट, ओके, मतलब 5 बजे से 6 बजे तक सिर्फ 2 व्हीकल यहाँ पे क्रॉस किया, इंक्लूडिंग यू 3 जन होगा, तुम खुद को काउंट नहीं करोगे, ठीक है, सो OW minus PW will give you the number of vehicles that will cross this segment जब तुमको मतलब तुम यहाँ पे रीच करोगे, मतलब कि TW टाइम में, ड्यूरिंग द TW टाइम
कितना, सिर्फ 2 व्हीकल यहाँ पे क्रॉस किया है। ओके, सो दैट इज द व्हीकल व्हेन ये है TW टाइम के लिए। अब तुम बोलो जब TE होता है, जब TE मतलब अब क्या करोगे तुम, 6 बजे से लेकर इस तरफ फिर से 7 बजे तक ट्रैवल करोगे और टाइम लग रहा है कितना, TE मतलब यहाँ से तुम स्टार्ट किया, यहाँ पे तुम खत्म किया, ठीक है। तो उतना टाइम में हमको ये भी काउंट करना है कि कितना व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। सो कैन वी से फ्रॉम कंक्लूड फ्रॉम हियर कि ड्यूरिंग TE NE, ये बोल सकते हैं ना हम 6 बजे से 7 बजे तक कितना यहाँ पे किया तुमने, काउंट किया 10 तो व्हीकल तुमने काउंट करते करते गया कि उस डायरेक्शन से आ रहे हैं 10 तो व्हीकल, ठीक है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते देखा कि अच्छा 10 व्हीकल्स हैव क्रॉस, ठीक है, मतलब कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कितना व्हीकल्स यहाँ पे क्रॉस करेगा ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर 1 आवर, NE नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। सो द टोटल टाइम 5 से लेकर 6, 6 से लेकर 7 मतलब 2 घंटा कैसे किया, TW प्लस TE, ठीक है। अब TW में यहाँ पे कितना क्रॉस किया इन दिस सेगमेंट वेस्टवर्ड वाला में, OW माइनस PW, ठीक है। और इसमें TE टाइम में कितना क्रॉस करेगा, NE क्रॉस करेगा। सो फ्रॉम TE प्लस TW में टोटल W माइनस PW क्रॉस कर रहा है और TE टाइम में NE क्रॉस कर रहा है। सो टोटल टाइम कितना है, TW प्लस TE है, सो टोटल व्हीकल कितना होगा, OW माइनस PW प्लस NE, ठीक है। उससे ये वाला आया है देखो, ठीक है। सो VW क्यों बोले, वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल्स विच इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब ये वाला सेगमेंट को क्रॉस करेगा, वेस्ट वाला सेगमेंट को, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल्स देखो इतना है, नंबर टोटल नंबर इतना है और इतना टाइम में, मतलब TE में इतना क्रॉस किया, TW में इतना क्रॉस किया, तो दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम आ गया है। ओके, एंड सिंस इट वाज इन आवर, या तुम्हारा वो है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 कर दिया है। ओके, तो ये वाला है फंडा और फॉर्मूला, हाउ वी हैव डिराइव दिस फॉर्मूला। ओके, अब सेम तुम्हारा दूसरा वाला भी अगर करेंगे हम लोग, VE भी अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर VE निकालेंगे तो VW का तो ये वाला फॉर्मूला है। अब VE जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, VE का भी सिंपल यहाँ पे NW निकाल दो। अगर एक फॉर्मूला डिराइव तुमको समझ में आया तो दूसरा भी इजी है। तो यहाँ पे जब VE होगा तो ये वाला NW होगा, ये वाला OE होगा, PE, और दिस विल बी सेम, टाइम विल बी सेम, TE प्लस TW, ओके, इनटू 60। ये क्लियर है वॉल्यूम कैसे आया ये वाला। अब टाइम कैसे निकालना है, ट्रैवल टाइम, दिस इज एवरेज, देखो इसीलिए यहाँ पे ये स्लैश है, एवरेज ट्रैवल टाइम। ओके, एक्चुअल ट्रैवल टाइम तो ये वाला दिए थे तुम, ठीक है। तो हम लोग एवरेज या मीन ट्रैवल टाइम कैसे निकालेंगे, यूज दिस फॉर्मूला। सो T एवरेज बार जो है W इक्वल्स टू क्या है, TW माइनस OW बाई माइनस PW बाई VW, ठीक है। बस यहीं पर ऐसा कर दिया है, कुछ नहीं, ये सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए 60 टर्म है। ओके, वैसे अगर TE बार निकालने के लिए बोलेगा तो TE माइनस OE माइनस PE बाई VE। ओके, सो ऐसे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो कैन वी डू वन प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे दिया है वॉल्यूम और ट्रैवल टाइम निकालो यूजिंग मूविंग ऑब्जर्वर मेथड। ओके, ऐसा चार्ट देगा तुम लोग को, दे विल गिव यू लाइक दिस टेबल, ठीक है। देखो क्या दिया है, ईस्टवर्ड की तरफ कितना बार गया है, 8 बार गया है, वेस्टवर्ड की तरफ भी 8 बार गया है, ठीक है। या कभी कभी क्या देता बोलो तो ईस्टवर्ड फिर वेस्टवर्ड फिर ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड ऐसा करके दे देता है, ऐसा अलग नहीं करके देगा, ठीक है। तब क्या करना है हमको, वी हैव टू सेपरेट, ईस्टवर्ड जितना भी उसको सेपरेट कर दो, वेस्टवर्ड जितना भी उसको सेपरेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज दे विल गिव यू मर्जिंग, मतलब जैसे हम एक बार इधर गए फिर इससे गए, राइट, तो इसीलिए ईस्ट गया फिर वेस्ट गया, ईस्ट गया वेस्ट गया, वैसा डाटा कलेक्ट करके करके तुमको दे देगा। लेकिन यहाँ पे सेपरेट ऑलरेडी कर दिया है, तो नो नीड टू डू दैट वन। और ट्रैवल टाइम जाते जाते तुमने कितना ट्रैवल टाइम, TW ये सब है, ये ईस्ट वर्ड की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज TE। ओके, फर्स्ट राउंड के लिए TE, सेकंड ट्रायल के लिए TE, ये सब है। नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दिस इज NE।
ओके। नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट ओवरटुक टेस्ट व्हीकल, ये क्या है, ओ ई है या पीई है ये वाला? नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट ओवरटुक द टेस्ट व्हीकल, इज इट ओ ई या और पीई? ये क्या है, ये ओ है या पी है ये वाला वैल्यू? O. O, suffix e, right? And this is what? Number of vehicles overtaken by the test vehicle, मतलब this is P, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ईस्ट वर्ड को सब एक साथ कर दिया, अब एवरेज निकालो, सबका एवरेज। तो दिस इज योर एवरेज, मतलब सबका ये एवरेज वैल्यू इज योर एन टी ई, ठीक है, ये है एन ई, दिस इज ओ ई एंड दिस इज टी ई, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे भी देखो, ये वाला आएगा टी डब्ल्यू, ये वाला आएगा एन डब्ल्यू, ये है पी डब्ल्यू एंड दिस ओ डब्ल्यू पी डब्ल्यू। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये सब लिखो। ये एन ई कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, जस्ट अभी वैल्यू लिख के रखो। टी ई इज 2.85 मिनट्स, ठीक है। देखो टी ई इज 2.85 मिनट्स, नोट डाउन, ठीक है। एन ई इज 79.5, नोट डाउन कर रहे हो, एन ई इज 79.5, ओके। ओ ई इज 1 एंड पी ई इज 1.5, ये नोट डाउन किया सबने? एवरीवन नोट इट डाउन प्लीज। TE is 2.85, NE is 79.5, OE is 1 and PE is 1.5. All these are the average of all these values, okay? इसका एवरेज ये है, इसका एवरेज ये है, ये हो गया ना, नोट डाउन किया ना। अब वैसे ही देखो वेस्ट वर्ड के लिए भी लिख लो, वेस्ट वर्ड के लिए ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये क्या है, बोलो। TW. Yes, this is TW, this is your NW, this is your OW and this is your PW, लिखो। TW is 3.07, ठीक है। ये है तुम्हारा NW is 82.25, फिर OW is your 1.25 and PW is 0.875, ठीक है। सिंपल तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है क्या बोलते हैं, ट्रैवल टाइम, एवरेज ट्रैवल टाइम, मतलब टी बार ई एंड टी बार डब्ल्यू, ठीक है। और उससे पहले क्या निकालना है, वी, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम डब्ल्यू, वी डब्ल्यू एंड वी ई। तो निकालो, जब वी डब्ल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, सिर्फ एन को ही यहाँ पे दूसरा वाला लेना है, ठीक है। और जब तुम वेस्ट वर्ड का लेगे तो एन ईस्ट वर्ड का लेना, बाकी सब तुम्हारा वेस्ट वर्ड का ही है सब कुछ, ओके। और यहाँ पे तो दोनों ट्रैवल टाइम रहेगा ही। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वी डब्ल्यू, बोलो तो। टाइम क्या था, मिनट में है तो इसको सेकेंड में कर दिया, ओ सॉरी, ये वाला टाइम्स तुम्हारा किस में है, मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हीकल पर आवर आएगा ये, नंबर ऑफ व्हीकल्स, सो व्हीकल्स नीचे आवर है, तो आवर को, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करके ये इंटू 60 कर दिया, ओके। सो व्हीकल पर आवर आएगा इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट। सो व्हाट इज वी डब्ल्यू, देखो एन ई कितना है, एन ई हम लोग का कितना आया था, एन ई इज 79.5, ठीक है। वी डब्ल्यू जब निकालेंगे तो क्या रहेगा, एन ई रहेगा प्लस ओ डब्ल्यू 1.25 माइनस 0.875, देखो, ठीक है। एंड दिस इज द एवरेज मतलब टाइम जो भी दिया गया है उसका एवरेज, ठीक है। सो 809, और इसको तुम मिनट से आवर में कन्वर्ट कर दिए, इसलिए व्हीकल पर आवर, ओके। वैसे हमको वीई निकाल के बोलो, वीई कितना हो, वी डब्ल्यू आ गया, व्हाट इज द वीई वैल्यू, वीई কত আসছে বলো, কে ক্যালকুলেট করছে,
VE के लिए क्या चाहिए तुमको, NW चाहिए, ठीक है, एंड रिमेनिंग चाहिए ये वाला, मतलब OE PE ये चाहिए, ठीक है। NW OE माइनस NW प्लस OE माइनस PE डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा TE प्लस TW। TE is 2.85, TW is 3.07 and your NW is your 82.25। तो देखो कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, VE के लिए NW is 82.5, ठीक है। OE is 1 बोल दिया था, PE 1.5, सी OE is 1, PE is 1.5, ठीक है। और NW देखो 82. ये N है और it is moving westward, so this is NW 82.25 divided by 2.85 plus 3. So in this way you have to solve the VE and VW। अब देखो तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, अब हमको जस्ट बोलो TW और TE का वैल्यू क्या होगा, TE एंड TW का वैल्यू क्या होना चाहिए। TW एंड TE का फॉर्मूला है दिस वन, पहले TW निकालो, तो TW के लिए यहाँ पे सब WW सफिक्स ही रहेगा, ठीक है। सो TW बार के लिए TW माइनस OW माइनस PW बाय VW, ओके। योर VW इज कमिंग आउट टू बी 810, ठीक है, बोल दे रहे हैं यहाँ पे 810 है, बाकी का तो क्या है OW तो पता ही था तुम लोग का कितना है, ठीक है। सो TW माइनस, और TW कितना आ रहा था, देखो TW आ रहा है तुम्हारा 3.07, ठीक है, वही दिया देखो 3.07 माइनस दिस इज OW 1.25 माइनस PW बाय VW विच इज 810, ओके, इनटू 60 कर देने से 3 मिनट्स में आएगा। सो T इज इन मिनट, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर दिया है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। सो T/60 इज आवर, ये वाला टर्म है आवर में, सो दिस इज मिनट, मतलब ये टर्म है सिर्फ मिनट एंड दिस होल टर्म इज इन आवर, ठीक है। तो ये वाला जो भी वैल्यू आएगा इट विल बी इन मिनट, ठीक, मिनट। सेम TE का भी वैसा ही होगा। क्लियर है ये वाला, बोलो, कोई तो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, हेलो, प्लीज टेल मी, एनी डाउट। प्रतीक बा जे आचो, डाउट है कि नहीं है। नो मैम, ठीक है। See this only this formula, यही फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है एंड डिराइवेशन कैसे किया वो हमने समझा दिया, ओके। मतलब ये अचानक से फॉर्मूला नहीं दिया है, ये वाला कैसे आएगा पता नहीं कैसे, ओके। तो हाउ वी हैव डिराइव्ड, आई हैव शोन दिस, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे देखो W रहेगा तो सिर्फ N का सफिक्स अलग होना चाहिए, बाकी सब सेम है, ओके। वैसे अगर E रहेगा तो ये वाला W, बाकी सब EE रहेगा, ओके। एंड नीचे तो तुम्हारा एक दोनों टाइम ही देना है, TE TW दोनों, ओके। देन अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द जर्नी टाइम एंड ट्रैवल टाइम आल्सो, या जर्नी स्पीड एंड ट्रैवल स्पीड, जर्नी स्पीड एंड रनिंग स्पीड, ठीक है। जर्नी स्पीड जब कैलकुलेट करने बोलेगा, डिस्टेंस विल बी गिवन टू यू, मतलब कि ये जो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है ये तुमको पता रहेगा, ठीक है। और तुमको क्या है, टाइम तो ऑलरेडी पता है, दिस इज द जर्नी टाइम, राइट, ये टाइम तो ऑलरेडी पता है तुम लोग का। सो यहाँ पे साइड अलोंग विद दिस, मतलब ये जो टाइम निकल आया ये वाला फॉर्मूला से, सो दिस फॉर्मूला से टाइम निकल आया, दिस इज ट्रैवल टाइम, राइट, एवरेज ट्रैवल टाइम, और जर्नी टाइम भी बोल सकते हैं। यू नो द डिस्टेंस, यू नो द एवरेज जर्नी टाइम, ठीक है। देन दे विल आस्क यू टू फाइंड द जर्नी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा एवरेज ट्रैवल टाइम ये है, डिस्टेंस तुमको पता है, तो इफ वी डिवाइड डिस्टेंस बाय दिस टाइम वी विल गेट एवरेज जर्नी स्पीड, ठीक है। अब बोलेगा कि रनिंग स्पीड निकालो, मतलब तुम्हारा जर्नी स्पीड में क्या होता है, जर्नी के टाइम में योर व्हीकल दो केस में हो सकता है,
मूव भी कर रहा होता है और कुछ कुछ जगह पे जाके वो थम भी रहा होता है, राइट? मतलब योर इट इज इन मोशन एज वेल एज इन स्टॉप कंडीशन, डिले उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम्हारा 10 मिनट आया है, ठीक है, और डिले दे दिया है 2 मिनट, देन व्हाट इज योर रनिंग टाइम? ट्रैवल टाइम तुम्हारा 10 है, टोटल जर्नी टाइम इज 10 मिनट्स, सॉरी 1 आवर अगर है, 60 मिनट्स है, ठीक है। बस से बीबीआईटी तक जाने का तुम्हारा 60 मिनट्स है, लेकिन उसमें से तुम्हारा ऑलरेडी 20 मिनट्स योर मोशन वाज इन स्टॉप कंडीशन, मतलब तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, इधर स्टॉप थे या जैम में अटके हुए थे, जो भी है 20 मिनट्स तुम्हारा मोशन वाज नॉट, योर व्हीकल वाज नॉट इन मोशन। तो एक्चुअली रनिंग टाइम कितना हुआ तब? आउट ऑफ 60 मिनट्स 20 मिनट वाज स्टॉप कंडीशन और डिले कंडीशन, ठीक है। तो कितना टाइम तुम्हारा रनिंग कंडीशन में था? 40 मिनट। 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट तुम्हारा गाड़ी मूवमेंट में था, राइट? वाज इन रनिंग कंडीशन। सो व्हाट इज द रनिंग स्पीड देन? टोटल डिस्टेंस सपोज हम बोले थे 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सॉरी 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है, और तुम्हारा रनिंग टाइम है कितना? 40 मिनट्स। सो व्हाट इज योर रनिंग स्पीड? 5 किलोमीटर, राइट, डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स, राइट? या उसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो रनिंग स्पीड ऐसे निकालता है। तो तुम्हारा जो भी रनिंग स्पीड, अगर जर्नी स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेगा? डिस्टेंस बाय इस वाला वैल्यू कर देना है। अगर पूछेगा रनिंग स्पीड निकालो तो डिस्टेंस इज सेम बट टाइम थोड़ा कम हो जाएगा तब, ठीक है। तो TW माइनस डिले, नीचे टाइम में क्या हो जाएगा? TW माइनस डिले या स्टॉप कंडीशन विल गिव यू the running time. If you know the running time, then you can easily calculate running speed, मतलब distance by running time. Okay, so journey speed is distance by journey time, travel time या average travel time, और running speed क्या है? distance by running time. Okay? ये सब भी बोल सकता है apart from these two values, मतलब volume और travel time के अलावा भी बोलेगा find out journey speed and running speed, तो वैसे निकालना है। Clear? Okay. ठीक है देन, आज के लिए इतना ही है। ओके, प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दैट वन, that type of problem. Okay.